Now we are going to discuss the next gland, that is the parathyroid gland. Okay, parathyroid gland. And this gland is also remain associated with the thyroid gland. It is not found separately from the thyroid gland. So it is the name of this gland connected or consists of the name of the previous gland, that is thyroid gland. ये जो आपका पैराथायराइड टर्म दिया गया है, तो इस टर्म में थायराइड टर्म ऐड हुआ है, एडेड दिख रहा है, मीन्स ये एक ऐसा ग्लैंड है विच इज रिमेन अटैच टू द thyroid gland, so it is known as parathyroid gland. And about the location and the parathyroid gland, it is remain associated on dorsal side of the thyroid gland. Here this is the ventral view. In this view we cannot represent the parathyroid gland, because the parathyroid gland, which is found 4 in numbers, 2 in each lobe, but it is appear, or parathyroid glands are appear especially from the dorsal side. So if we draw the structure from the dorsal side, then we can find out the parathyroid gland. So here we can observe suppose this is the dorsal view. In dorsal view we cannot observe this connection, which is known as isthmus, and from the dorsal view we can only observe the lobe of the thyroid gland. So on dorsal view, this is the dorsal view, and here rectangular start, and on the dorsal side, from the dorsal face we can observe there are 4 dark spherical structure embedded in the thyroid gland, and these are known as the parathyroid gland. These are called parathyroid gland. So when we call about the location of parathyroid gland, so the location is on the dorsal side of the thyroid gland, on the back side of dorsal or back side of thyroid gland. On dorsal or back side of thyroid gland, there are 4 glands remain associated. These are 4 in numbers. 4 in number. There are 4 glands, 4 parathyroid gland, 2 in each lobe. 2 जो है एक लोब में, क्या आपका राइट लोब में 2 दिख रहे हैं और लेफ्ट लोब में 2 ऑब्जर्व हो रहे हैं. Now, next topic is about the hormones. After the location, we continued with the hormones secreted from these particular gland. So the hormone secreted from the parathyroid gland are known as parathyroid hormone. Parathyroid hormone.
The hormone secreted from the parathyroid gland, they are known as parathyroid hormone, or in short it is called PTH. पैराथायराइड हार्मोन और PTH, इसको हम PTH के नाम से जानते हैं. So now, as after the name of the hormone secreted from that the particular gland, we observe the function of the hormone in our body. So let us start with the functions of the parathyroid hormone in our body. हमारे बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में जानते हैं. So our next point is the functions of the parathyroid hormone. So the function of parathyroid hormone, it is associated with the hormones, one hormone which is released from the thyroid gland, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. थायरोकैल्सिटोनिन which regulate the blood calcium level. Same function, that is regulation of blood calcium level, is also performed by parathyroid hormone. Means ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है. इट increases the blood calcium level. ब्लड कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करने का काम करता है बाय बोन रीजॉर्प्शन प्रोसेस. Especially bone is the source of calcium in our body, because the structure of bone consists of calcium in maximum amount. So when our body needs calcium ion की जरूरत कहाँ होती है बॉडी में? बॉडी में जो है हमारे जो मसल्स होते हैं उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और वर्किंग ऑफ मसल्स के लिए जो है कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है. कैल्शियम आयन की अगर डिफिशियंसी होगी तो आपकी बॉडी के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए कैल्शियम आयन जो है ब्लड में होना बहुत ज़रूरी होता है. एडिक्वेट अमाउंट में वी सप्लाई द कैल्शियम आयन टू आवर मसल्स. सो इन inadequate supply of calcium ion in our diet, अगर हमारे डाइट में कैल्शियम आयन की कमी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, so the calcium ion or requirement of calcium ion fulfilled from the bone, from our body bone, हमारे बॉडी के बोन से इनका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है. और ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? So the hormone responsible for this function is the PTH, पैराथायराइड हार्मोन. पैराथायराइड हार्मोन जो है वह कैल्शियम आयन को दोबारा हमारे बोन से रीजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू, बाय बोन रीजॉर्प्शन प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे बोन से दोबारा कैल्शियम आयन को डीमिनरलाइज करके कैल्शियम आयन को फिर से ब्लड में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट जो है बना रहे. और जब फिर से कैल्शियम आयन जो होता है ब्लड में अधिक हो जाता है, ब्लड में फिर से सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम आयन आ जाता है, देन द कैल्शियम आयन ट्रांसफर टू आवर बोन फॉर देयर स्ट्रेंथ, देयर मैन्युफैक्चरिंग, and that function is performed by थायरोकैल्सिटोनिन. मीन्स थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो कैल्शियम आयन को ब्लड से बोन में कन्वर्ट करता है. और PTH पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो बोन से दोबारा कैल्शियम को ब्लड में लाने का काम करता है. व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम अपीयर इन द ब्लड, ब्लड में जब डेफिशिएंसी दिखाई देती है तब ये ऐसा काम करता है. इसके अलावा जो है ये बोन से जो है कैल्शियम आयन को
रीजॉर्प्शन प्रोसेस तो करता ही है, उसके अलावा इट आल्सो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, reabsorption of calcium ion from renal tubule. As we have discussed in our previous chapter as a topic of reabsorption in kidney functioning और mechanism of kidney और urine formation. Urine formation के समय हम एक प्रोसेस पढ़े थे जिसको बोला गया रीएब्जॉर्प्शन आफ्टर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो वो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट के साथ एसेंशियल कंपोनेंट चले जाते हैं ब्लड से, उनका फिर क्या होता है दोबारा ब्लड में वापसी होता है, ब्लड में उसका बैकवर्ड रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो वाटर हुआ, बहुत सारे आयंस हुए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हुए, अमीनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हुआ, तो उसमें एक जो आपका आयन होता है कैल्शियम आयन भी होता है। तो कैल्शियम आयन का दूसरा अगर ब्लड में डिफिशियंसी होती है तो ये किडनी ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ाता है? पीटीएस पैराथायराइड हार्मोन। तो ये थे आपके जो है functions of parathyroid hormone which are released from the secreted from the parathyroid gland. Parathyroid gland से बनने वाले हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन का ये मेन फंक्शन था। स्पेशली जो है ये कैल्शियम आयन को क्या करते हैं ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं बाय इंक्रीजिंग। अगर ब्लड में कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी होती है तो उस समय पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होगा? पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा। और रिलीज होने के बाद ये क्या करता है ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो दो जगह से दो सोर्स होते हैं जहाँ से कैल्शियम आयन को दोबारा ब्लड में लाया जा सकता है। एंड these two places are the first is the bone and the other is the renal tubule. renal tubule से और बोन से दो जगहों से ब्लड कैल्शियम को क्या करता है ब्लड में दोबारा एंटर कराने का काम करता है। तो ये था आपका पैराथायराइड ग्लैंड। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगला ग्लैंड आप हम लोग पढ़ेंगे बिलो द थायराइड ग्लैंड इन आवर चेस्ट कैविटी। ओके, इन चेस्ट कैविटी देयर इज अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज नोन एज थाइमस ग्लैंड। अब जैसे जैसे हम लोग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी हम लोग मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपका ब्रेन में पाया जाता है, सॉरी नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किए थे। तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू लोअर पार्ट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। तो जस्ट बिलो द पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, यहाँ नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड पाया जाता है। तो उससे नीचे आपका चेस्ट कैविटी है। सो इन चेस्ट कैविटी देयर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर हार्ट इन बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में हार्ट के जस्ट सामने एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। सो द नेक्स्ट ग्लैंड we are going to discuss is the thymus gland. आपका नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। आफ्टर द पैराथायराइड ग्लैंड इज द थाइमस ग्लैंड। बात करते हैं थाइमस ग्लैंड क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है। पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन ऑफ द थाइमस ग्लैंड is the between the lungs लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। बिहाइंड स्टर्नम
on behind sternum on ventral side of aorta. Between the lungs, दो लंग्स के बीच में, लंग्स का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं, लंग्स के बीच में आपका हार्ट पाया जाता है। तो हार्ट के जस्ट सामने यहाँ पे एक टर्म आया है एओर्टा। सो एओर्टा वी हैव डिस्कस इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एज द मेन आर्टरी विच पंप ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्पेशली throughout the body from the left ventricle से जो blood pump किया जाता है to whole parts of body after oxygenation, वो किसके pump किया जाता है? through aorta. So the gland which is known as thymus gland present on ventral side of the aorta, which is the part of our heart. ये हार्ट का पार्ट है, हार्ट से निकला हुआ आर्टरी है। हार्ट से निकलने वाले दो आर्टरी होते हैं, एक आपका एओर्टा कहलाता है जो कि होल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, और दूसरा होता है पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करता है, सप्लाई करने का काम करता है। सो ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा बिटवीन द लंग्स behind the sternum is the bones which is the part of our rib cage, chest cavity के पास जो rib cage होता है उसी का एक पार्ट होता है sternum, जो आप स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। So this is the location of thymus gland. Thymus gland का लोकेशन क्या होता है ये आपको पता चल गया। Now the next it is the hormones. हार्मोन्स कौन से बनते हैं? सो हार्मोन रिलीज फ्रॉम थाइमस ग्लैंड, इट इज नोन एज थाइमोसिन। द हार्मोन इज नोन एज थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं? थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। एंड द थाइमोसिन हार्मोन इज especially responsible for the immunity system of our body. It regulate our immunity system. हमारे बॉडी का जो है इम्यूनिटी सिस्टम ये रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं? तो चलिए बात करते हैं इसके फंक्शन की। सो under the heading of function we will discuss some functions of this hormone in our body. Especially the functions are related to our immunity system. So one of the functions of the thymosin hormone is differentiation of T lymphocyte. Differentiation of T lymphocyte which facilitate cell mediated immunity in our body, जो कि हमारे बॉडी में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को फैसिलिटेट करता है। अभी आप जो है प्रीवियस क्लास में एक चैप्टर पढ़े होंगे व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, क्लास 9th में आपके जो है ये चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल इन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर। सो ऑन दैट प्लेस उस समय आप लोगों को बताया गया होगा इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। वहाँ पे आप पढ़े होंगे एंटीबॉडीज के बारे में, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। तो देखिए बॉडी में इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? WBC। सो ये टी लिम्फोसाइट जो है एक तरह का लिम्फोसाइट सेल होता है। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट एक बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। सेल मेडिएटेड मीन्स ये डायरेक्टली जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में ब्लड में एंटर करता है तो ये टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? उसके पास जाकर के उसको उसके ऊपर कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं और खा जाते हैं।
या फैगोसाइटोसिस के थ्रू उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। मीन्स टी लिम्फोसाइट के पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, वो उस बैक्टीरिया के पास जाएंगे और उसे टच करके उसको पकड़ के उसको जो है किल कर देंगे। तो ऐसे इम्यूनिटी को हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट ऑफ आवर बॉडी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट in our body is done by thymosin hormone। thymosin hormone से इसका डिफरेंशिएशन होता है। अब अगला जो है नेक्स्ट फंक्शन, इट इज आल्सो प्रोवाइड, जो thymosin हार्मोन होता है ये आल्सो जो है प्रमोट करता है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। तो एंटीबॉडीज जो है कौन से सेल से बनते हैं? बी लिम्फोसाइट सेल से। एंड एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो होता है ये हमारे बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मीन्स ये होता है कि बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल पैथोजन जो है बॉडी के ब्लड में किसी और जगह पे होगा, एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट कहीं और होंगे, दोनों के बीच में गैप होगा, लेकिन तभी ये बी लिम्फोसाइट उसको मार देता है। कैसे मारता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, और उस केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज रिलीज कर देता है ब्लड में और वही एंटीबॉडीज दूर तक जा करके बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो ऐसे इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी एज वेल एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, फॉर बोथ इम्यूनिटी thymosin is responsible in our body which is secreted from thymus gland। thymus gland से जो कि secrete होता है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे क्या कि thymus gland जो होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर thymus gland में कुछ एब्नॉर्मलिटीज होती है तो ऐसे में हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो सकता है। तो एक फैक्ट आप जानेंगे यहाँ पे कि जो थाइमस ग्लैंड होता है यह एडल्ट में, चाइल्डहुड में तो बहुत ही एक्टिव रहता है, बट जैसे जैसे बॉडी ओल्ड एज में जाती है, एज द बॉडी बिकम्स ओल्ड, द थाइमस ग्लैंड और द सेल्स ऑफ थाइमस ग्लैंड बिकम्स डीजनरेट। जो सेल्स ऑफ थाइमस ग्लैंड होते हैं वो डीजनरेट होना शुरू करते हैं। तो जब डीजनरेट होना शुरू करेंगे तो इसीलिए बूढ़े लोगों की क्या होती है कि इम्यूनिटी क्या होती है? वीक हो जाती है। जब सेल्स डीजनरेट होंगे तो जो हार्मोन है थाइमोसिन उसका रिलीज क्या होगा? बहुत ही कम होगा। एंड ड्यू टू लेस रिलीज ऑफ थाइमोसिन द बॉडी बिकम्स और बॉडी हैव वीक इम्यूनिटी सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द थाइमस ग्लैंड एज वेल एज पैराथायराइड ग्लैंड।